of this faculty development program at Kumari Mayawati Government Girls PG College, Badalpur. We all have assembled here on this platform, not just because we want to learn something new, not just because this is the best possible utilization of time during lockdown days, but as we all know that our world is suffering from an unprecedented, so far the worst crisis ever in history. And we all, being the learned person, want to take our world out of it. We want to do our part of duty for our nation. And for this purpose, we all have assembled here on this platform together. Starting from 6th of May 2020, this FDP has come up with so many wonderful speakers, great speakers who have enriched us with their wonderful possibilities and opportunities which could lead us, if not better, then at least in the similar world ahead after the COVID-19 era. I hope this FDP lived up to your expectation and it has now headed towards its end. Today, it is the last day of this FDP and I'm Neha Tripathi, Assistant Professor in the Department of Chemistry and your day coordinator for today. In today's valedictory session, our session is chaired by none other than a very well-known face for all of us, all the participants, Dr. Neetu Singh, Associate Professor in the Department of Home Science, Himwati Nandan Bahuguna, Government Girls PG College, Naini. And as a reporter, we have with us Dr. Neelam Sharma, my colleague, Assistant Professor in Department of Sanskrit in the same college, Kumari Mayawati Government Girls PG College, Badalpur. So for further taking the session, I would request our respected chairperson to kindly take over. Thank you. Very good morning to all the participants. First of all, respected Principal Ma'am, Professor Divya Nath, coordinator, course coordinator, and all the participants of this FDP. I have been told to take first of all the feedback from all the group leaders of this FDP which have been taking place. So let us start. You have to give the feedback of your group in just 5 to 6 minutes. कि लास्ट 6 डेज में आपके ग्रुप का क्या एफर्ट रहा और इन वेरी ब्रीफ क्या क्या टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन हुए एंड व्हाट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन या हाउ डिड योर ग्रुप रिएक्टेड और उनका रिएक्शन क्या था या पार्टिसिपेशन ओवरऑल ऑफ द ग्रुप कैसा था इस एफडीपी में. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ग्रुप, may I invite the group leader of group 1. I don't have the name please, so नेहा प्लीज सी कि कौन है और उनका माइक अनम्यूट करने का. माइक तो अनम्यूट कर दूंगा नीतू मैम जी. हाँ, कौन है ग्रुप लीडर फर्स्ट का? नेहा सर, ये अरविंद सर से बात हो सकती है. डॉक्टर अरविंद यादव सर फर्स्ट ग्रुप में है. अच्छा, उनका खोलूं? जी सर. अंकिता, आई थिंक अंकिता व्यास थी. नहीं, अंकिता व्यास को बुला सकते हैं. जिन्होंने प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं उन्हीं को बुलाते हैं फिर हम, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है. और एक मिनट माइक खोल रहा हूँ. आप लोग ग्रुप में अपना नाम लिख सकते हैं. ग्रुप 1 से कौन दे रहा है, ग्रुप 2 से कौन देना चाहता है, हम उसको बुला लेंगे आगे से, है ना. प्लीज अपना फीडबैक में लिख दीजिए किसको बुलाना है. और behalf of group 1 please present the feedback regarding this FDP and also on behalf of your group also. Ma'am, this FDP is really informative and very interactive FDP. So this is my first FDP in Zoom online, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. प्लस हमारे ग्रुप मेंबर्स ने सबने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. स्पेशली आभा मैम सपोर्टेड मी अ लॉट. हम लोगों ने रात भर बैठ के साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करके पीपीटीज बनाई सबने. इनफैक्ट प्रेजेंटेशन से पहले भी हम लोग सब 11:30 तक सबने ग्रुप मीटिंग्स करी. सबने बहुत हेल्प करी मेरी, सबने सपोर्ट किया और सबने अपना अपना टाइम दिया. और ये एफडीपी काफी मेरे लिए मेरी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई.
और मैंने काफी चीजें सीखी कोविड-19 के बारे में, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, और मैं क्या आगे इम्प्रूव कर सकती हूँ। औरों की भी पीपीटीज काफी अच्छी थी। परिधि मैम की पीपीटी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, प्रैक्टिकल थी, और बहुत बेसिक बातें बता रखी थी जो हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे इस टाइम पे डाल सकते हैं। उन्होंने काफी अच्छे से अपनी पीपीटी दी, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स ने भी अच्छे से इंटरेक्ट किया, और सब ने बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व हुए इस एफडीपी पे। थैंक यू मैम। थैंक यू। ग्रुप 2 से प्लीज लिख दीजिए। ग्रुप 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हेमवती नंदन बहुगुणा, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप 2 ही इज गोइंग टू प्रेजेंट द फीडबैक। भास्कर जी प्लीज। जी थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम दिव्यनाथ मैम, कोर्स कोऑर्डिनेटर डीसी शर्मा सर, हमारे कन्वीनर किशोर सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दीप्ति मैडम, आज के हमारे जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर नीतू मैडम, डे कन्वीनर डॉक्टर नेहा त्रिपाठी और रिपोर्टर डॉक्टर नीरज शर्मा जी का मैं धन्यवाद दूंगा। और बहुत बहुत खास तौर पे इस एफडीपी में, क्योंकि मुझे अचानक से ही बोलना पड़ा, तो हमारे जितने भी लोगों ने, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे सीरियल नंबर 11 से लेके सीरियल नंबर 20 तक, उन्होंने सबने अपने जो अपने टॉपिक को प्रेजेंट किया। हरेन जी ने किया, मैंने किया, आजाद जी ने किया, बलराम जी ने किया, कल्पना जी, ज्योति मैडम, मनी मैडम, अमित जी। तो लगभग हम लोगों ने, जितने लोगों ने इसमें किया, सबकी प्रेजेंटेशन मैम बहुत अच्छी रही। और खास तौर पे हमें लगा कि हमें शायद ये 6 दिन का नहीं, हमें ये टाइम बढ़ाना भी चाहिए। हमने सच में अपने जो मुश्किल समय तो मुझे नहीं लगा, और ये इस टाइम का बीतना हम लोग के लिए बहुत ही लग रहा है कि और ये समय बढ़ जाता शायद हम लोग बहुत अच्छी चीजें और सीख सकते थे। खास तौर पे मेरे लिए, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन लगा कि नहीं, एक शुरुआत अगर हम लोग इस एफडीपी के साथ शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कि अगली बार हम लोग इस पे इनिशिएटिव लें और इसमें अच्छा काम करें। तो पूरी टीम को, बादलपुर कॉलेज की टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और सबसे खास बात बता रहे हैं, ये एफडीपी नहीं है, इसको मैं कहूँगा कि स्ट्रेस फ्री प्रोग्राम। इसमें हमें कहीं स्ट्रेस नहीं लगा। जैसे हम लोग ओरिएंटेशन, रिफ्रेशन, जैसे हमारे कई साथियों ने किया भी होगा, तो उन्हें रिफ्रेशर, ओरिएंटेशन या और भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें इतना स्ट्रेस रहता है कि हमें प्रेजेंटेशन है, माइक्रो टीचिंग है, फिर हमें समरी है, फिर बुक की हमारे रिपोर्टिंग है। एक समय आता है बस किसी तरह खत्म हो जाए। लेकिन ये हमें नहीं लग रहा है कि कहीं से भी हमें किसी भी प्रकार की कहीं से भी स्ट्रेस लगता था 11 बज गया, जल्दी से बैठ जाओ और अपने लोगों के साथ डिस्कशन करना। और डिस्कशन भी कई बार तो सर ऐसा होता था कि हम लोग बात करते थे और ऐसी चीजें पता लगती थी कि लगता था कि नहीं साहब, इस पे हम लोग को एक पूरे प्रोग्राम ही कराना चाहिए। तो सर बहुत बहुत आपके पूरे महाविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज के जितने चेयरपर्सन नीतू मैम, कन्वीनर नेहा मैडम, रिपोर्टर नीरम मैम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ग्रुप 2 की तरफ से प्रेजेंटेशन भी हम लोग ने जो किया था, उसमें सर हमने कोशिश करी थी कि प्री कोविड-19, ड्यूरिंग कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19 के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, एनवायरनमेंट के बारे में। और उसमें हमने जितनी भी चीज़ों को हो सकता था पूरा प्रयास किया कवर करने का। और हमें लगता है कि जितने लोगों ने भी, किसी ग्रुप को नहीं, लेकिन जितने भी 9 ग्रुप थे, हमें लगा कि हमने 9 रत्न की तरह, 9 रत्न जो होते हैं ना, कि किसी भी आप रत्न को कह नहीं सकते कि पहला रत्न बहुत अच्छा है, दूसरा रत्न बहुत अच्छा है, कि 9वां रत्न अच्छा। हमारे 9 रत्न हैं, सबकी अलग क्वालिटी थी और 9 ग्रुप ने जबरदस्त और बेहतरीन। मैं इसके लिए फिर से आप सब लोगों को, पूरे ग्रुप वालों को, अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ बादलपुर कॉलेज के प्रिंसिपल मैम को, और मैम को देख के लगता है कि इतने सहज होने के साथ साथ उन्होंने इतना सपोर्ट जो किया है कॉलेज वालों को, शायद इसलिए ये काम बहुत आसान लगता है। और उनके साथियों ने पूरा, और उनको जस्टिफाई किया कि मैम ने जो उन पे विश्वास किया है, उन्होंने उस विश्वास को जीता है। और मैं सर को इस कार्यक्रम को एक तरह से इनफॉर्मली कह ही सकता हूँ कि आज हम लोग 6वां दिन है, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव वे है। और मैं निवेदन भी करूंगा सर से कि कुछ ऐसे ई लर्निंग के कुछ छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज भी कराइए, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो सर, चाहे पर्सनल आपकी तरफ से भी हो, तो हम लोग और भी चीज़ों को, खास तौर पे कुछ चीज़ें तो हम लोग ने बहुत अच्छी सीखी हैं।
श्रीनिवासन सर की क्लास थी, फिर वो विमला मैम की क्लास थी। तो वो क्लासेस ऐसी लग रही थी कि हमें 2 घंटा नहीं, उसमें कम से कम हमें 2 घंटे और मिलने चाहिए, उनके सेशन और होने चाहिए थे। और कल की प्रेजेंटेशन तो लगा कि कम से कम 1 घंटे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी सर। आपको ग्रुप 2 की तरफ से, सभी ग्रुप की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से, नीतू मैडम की तरफ से भी मैं कह सकता हूँ कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू भास्कर जी। और यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी, दिनेश जी, आपकी टीम में, इनकी टीम में 9 रतन नहीं है, इस समय 100 रतन है यहाँ पर। हम सब 100 रतन है यहाँ पर, और सब एक से बढ़कर एक है। मौका नहीं मिला, राइट, ग्रुप के वाइज बोला था मैंने। नहीं नहीं, ग्रुप वाइज, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और सब अपने अपने फन में हुनर रखते हैं। तो वी वेलकम ऑल दी 100 रतन इन दिस एफडीपी के वैलिडिटरी सेशन में वंस अगेन। एंड अगेन नाउ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर ग्रुप लीडर डॉक्टर मंजू शुक्ला मैम, आप प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर माया कर रही है मैम, मैंने आपको फीडबैक में दिया है मैम, शेयर किया आप अपना। ठीक है मैम। डॉक्टर माया मैम प्लीज। जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मैम। और जो भी एफडीपी के पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, नीतू मैम को, डे कन्वीनर नेहा मैम को, सभी को मेरी तरफ से सादर आभार। और इस एफडीपी का जो फीडबैक है या एक्सपीरियंस है, उसके लिए मैं अपने अगर ग्रुप से शुरू करूं तो मेरे ग्रुप में सभी के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए हमें जो थीम दी गई थी सोसाइटी से रिलेटेड, उस पे हम सब ने अपने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अपने विचार रखे वहां पर। और जो इसके बाद ओवरऑल फीडबैक, जैसे पूरे एफडीपी में हमें जो कोविड-19 से रिलेटेड इश्यूज हैं, लाइक इन्वायरमेंट, हेल्थ, कल्चर, इकोनॉमी, इसके अलग अलग जो पहलू थे उनको बहुत गहराई से जानने समझने का एक मौका मिला इस एफडीपी में। और इसके अलावा जैसे इन सब चीज के साथ आईसीटी टूल्स के ऊपर जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत जरूरी हो गई है, और जिनके बिना आज हम कोविड-19 के इस लॉकडाउन पीरियड में चल नहीं सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा सर ने अपना स्पीकर्स को बुला करके आयोजन करवाया। और स्पेशली श्रीनिवासन सर, उसका मैंने एक वर्कशॉप पहले भी किया हुआ था, और इसमें भी सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि हम इस लॉकडाउन पीरियड में घर पे रहते हुए किस तरीके से इन ऑनलाइन चीजों का प्रयोग करके हम अपनी क्लासेस को और सब चीजों को कितना स्मूथली चला सकते हैं। और ओवरऑल जो पूरा एफडीपी रहा, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरेक्टिव। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, सब में बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, सब एक से एक इंफॉर्मेशन के साथ थे। और स्पेशली मेरा एक रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजिंग टीम से कि उनका भी एफर्ट बहुत अच्छा था, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था हमारे साथ। कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती थी वो हम उनसे पूछते थे, वो बताते थे। इसके बाद इसके अलावा भी वो हमें और भी चीजें अच्छे से बताते थे। और थोड़ा सा एक चीज ये है, सर से रिक्वेस्ट भी है कि ये जो आईसीटी टूल्स के ऊपर थोड़ा सा कुछ मेरे प्रश्न भी थे, मैंने डीसी शर्मा सर से पूछा भी था कि कुछ हैं उनके लिए हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराने के लिए कुछ ऐसा एक प्रोग्राम तैयार करें, और उसके लिए हमें मौका दें कि हम उनके साथ सीख सकें इन सब चीजों को। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माया मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। और नाइस टू हियर दैट कि ये फीडबैक ये आपको एफडीपी से कितना फायदा हुआ है, और रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू। नाउ आई मोस्ट हम्बली इनवाइट फ्रॉम ग्रुप 4 श्रीमती नेहा त्रिपाठी जी को, एंड हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर नीतू सिंह जी, डीसी शर्मा सर, ऑर्गेनाइजिंग टीम। मेरे पास आया है कार्यभार कि मैं फीडबैक दूं अपने ग्रुप 4 का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वी मेड प्रॉपर यूज ऑफ आवर टाइम एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट टॉपिक एंड लर्नड अ लॉट। हमारा ग्रुप जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। हमने एक दूसरे से हर दिन कोई ना कोई चीज़ सीखी जी। डॉक्टर प्रतिभा जी, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर रमाकांति मैम, डॉक्टर रानी तिवारी जी, डॉक्टर रतन सिंह, डॉक्टर रवि अग्रवाल, डॉक्टर रिचा जी एंड डॉक्टर सत्येंद्र खातियान जी। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है डॉक्टर सत्येंद्र खातियान जी, जो कि हमारे ग्रुप लीडर के रोल में रहे। उनका बहुत अच्छा रोल रहा और बहुत अच्छा लगा इस एफटीपी का पार्ट बन के। एक ये तो इसमें कोई शक नहीं कि टीचिंग जो है एक नो डाउट लर्निंग प्रोसेस है, और हर समय हम जो है एक स्टूडेंट के रोल में ही होते हैं।
तो इतना सारी चीज़ों को समझ में आना, और जो सर ने बोला है कि 100 रत्न जो है, 90 रत्न हम लोग जो शामिल हुए हैं, तो इतने सारे अलग अलग व्यूज को जानना, एक अपना भी एक पर्सपेक्टिव बना पाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी अपने ग्रुप 4 की तरफ से कि थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हम सबको इसका एक पार्ट बनाया, हम सब लोग यहाँ पे इसमें जुड़े। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसा ही चाहेंगे कि भविष्य में भी कभी कुछ हो तो हम ऐसे ही जुड़े रहें। ये जो चीज शुरू हुई है ये कभी खत्म नहीं हो, ये डोर हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सरिता शर्मा मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड नाउ गुड मॉर्निंग टू ऑल। जी मैडम, जी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। आ रही है मैम। जी, डेडिकेशन बहुत है, और इस एफडीपी के लिए अटेंड करने के लिए बहुत बहुत बधाई भी है मेरी तरफ से, मेरे ग्रुप की तरफ से, क्योंकि हम लोगों का कॉलेज खुल चुका है और हमें इंस्ट्रक्शंस है विद ग्लव्स एंड मास्क यू हैव टू एंटर इन द कॉलेज आफ्टर द स्कैनिंग इन द कॉलेज, बिकॉज इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इट्स जॉइन बैक नाउ। बट मैं कब से इंतजार कर रही थी कि 11 कब बजे, 11:30 कब बजे, तो मैं अपना फीडबैक दे पाऊँ। व्हाट ए वंडरफुल knowledgeable FDP I ever attended. Really thankful from my all team members. सभी के सभी एक एक करके इतने अच्छे तरीके से उन लोगों ने सपोर्ट किया, टाइम टू टाइम गाइड किया किस तरीके से हम बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। और हमारे ग्रुप का टॉपिक था इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमी को डॉक्टर प्रियंका ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि किस तरीके से कृषि वर्ग को आगे लाकर अपने इंडिया और भारत को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। डॉक्टर राम नरेश जी यादव जी ने भी अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि कृषि में हम किस तरह से नए नए टूल्स को डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद किस तरीके से हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। डॉक्टर मनोज जी ने बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं उनके विषय में सब चीजों को बताया कि किस तरीके से हम अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं। और सबसे पहले तो मेरा थैंक करना बनता है डॉक्टर किशोर को, जिन्होंने मुझे बताया कि एफडीपी प्रोग्राम शुरू होने वाला है जस्ट बिफोर 1 डे व्हेनेवर आई हैव स्टार्टेड टू ज्वाइन। तो डॉक्टर दिनेश जी भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं सारी चीजें। मतलब मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा सभी ग्रुप का, कि मौका मिला हम लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक दूसरे के साथ बात करने का और बहुत ही विचारणीय सभी विषयों पर चर्चा करने का, जो कि तीनों दिन डे 1, डे 2, डे 3 सभी ने अपनी अपनी भूमिका एज ए चेयरपर्सन, एज ए लीडर, सभी ने अपने अपने हिसाब से बहुत ही बेहतर किया। और मैं थैंक्स करती हूँ मायावती पीजी कॉलेज का, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज की और हमें मौका दिया कि हम और अच्छे तरीके से किस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास जी का लेक्चर इतना अच्छा था, इतना इंफॉर्मेटिव था कि मन में एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आ गया है कि ताकि हम आगे और आने वाले टाइम में अगर कोई परिस्थिति आती है तो हम पूरी तरह तैनात हैं, पूरी तरह से तैयार हैं और घर से भी काम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड। Dr. Kavita ma'am, thank you so much for your kind words, for your motivation. And these words are not only motivating the organizers of FDP, but to each and every member, each and every participant of this FDP. The most important thing जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि सब लोग इतने humble हैं, supportive हैं और डाउन टू अर्थ है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको हेजिटेशन नहीं होता है कुछ पूछने पे, आपको हिचक नहीं होती है। और आप अगर नहीं जानते हैं, नोबडी इज परफेक्ट, है ना। हम लोग मिले हैं तो सीख रहे हैं। कोई मैंने किसी में भी कोई एटीट्यूड या कुछ नहीं देखा, मतलब बहुत ही हम्बल। आई एम रियली थैंकिंग फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट और फ्रॉम माई ऑल ग्रुप मेंबर्स, डॉक्टर संजीव जी, डॉक्टर सीमा जी, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर राम नरेश यादव जी और बाकी के और जो नाम अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं कॉलेज में आ गई हूँ अभी। तो सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल, मेरा नाम आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा आगे कभी जब भी कोई प्रोग्राम करें। और
अपने आप ही डाल दीजिएगा, जस्ट लेट मी इन्फॉर्म कि हम ये कर रहे हैं, तो मेरी प्रेजेंस हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। आप कॉलेज में होते हुए भी हमसे जुड़ पाए, देखिए ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। अगेन आप घर में थे तब भी हमसे कनेक्टेड थे, एंड नाउ यू आर इन कॉलेज आल्सो, देन आल्सो यू आर in touch with us. So thank you once again. Number 5, Dr. Shalu and Dr. Deepika ma'am. Group माइक number ओपन है। डिम्पल विज। हाँ सॉरी, डिम्पल विज मैम। थैंक यू सर। मुझे सिर्फ एक बात कहनी थी, एक्चुअली मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना था। कल एक क्वेश्चन पूछा था मीनाक्षी लोहानी मैम जी ने मुझसे। उस A very good morning to all the participants, all the members of this group. On behalf of all the group members of Group 5, I express my sincere gratitude and thanks to Principal KMGG PGC Badalpur, organizing committee of this FDP, and all my fellow participants. So now I am presenting the feedback of this program. First of all, I would like to talk about my group. तो जो ब्रॉड टॉपिक था मेरे ग्रुप का, दैट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दिस पैंडेमिक कोविड-19। तो अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो टोटल 10 मेंबर्स थे, सब अलग अलग एरिया से, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए थे, लेकिन हम लोगों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि लगा ही नहीं कि हम इतने डाइवर्स फील्ड, सबके फील्ड अलग हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट तो कोई नहीं था, कोई इकोनॉमिस्ट, कोई केमिस्ट, कोई योगा गुरु। तो बात करके सबसे, और हम लोगों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो गया इन 6 दिन में, 7वां दिन है, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अलग अलग जगह से आए हुए हैं। मैं कुछ क्या सभी के नाम मेंशन करना चाहूंगी। डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर सुशीला, डॉक्टर टीना, डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर विजेता गौतम, डॉक्टर विनीता सिंह, डॉक्टर अजय दुबे, डॉक्टर अनुमेहा एंड डॉक्टर डिम्पल विज। तो इन सभी को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि एज ए ग्रुप लीडर मैं मतलब मुझे इनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। इसके बाद मैं अगर इस एफडीपी पे जो हमारे दूसरे सेशन चले आउट ऑफ द ग्रुप, तो उसमें मैं विशेष रूप से डॉक्टर श्रीनिवासन, जिन्होंने आईसीटी टूल्स यूज करके कैसे हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में बताया, जो कि इस समय की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है हम टीचर्स के लिए, कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स से। और मैं विश करती हूँ कि हमें उनके साथ और भी वर्कशॉप या कुछ भी प्रोग्राम्स करने का और मौका मिले। अगर आप लोग, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, और भी प्लेटफॉर्म है कि अगर वो मतलब इस ही कॉन्टेक्स्ट में आईसीटी टूल से रिलेटेड अगर और वर्कशॉप कराए तो प्लीज मेरा नाम जरूर इंक्लूड करें उसमें, क्योंकि आई एम वेरी विलिंग टू अटेंड इट। और इसके अलावा डॉक्टर वाई विमला ने जो भी लेक्चर दिया, जो भी अपना प्रेजेंटेशन दिया, उससे हम, क्योंकि मैं उसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हूँ, तो काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए। और जो हम डायलेमा में थे कि क्या होना है, कैसे होगा, मीन्स हम पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, एग्जाम्स कैसे होंगे, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। तो दिस सेशन वाज आल्सो वेरी फ्रूटफुल। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स में भी मैं देख रही थी, डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल हैं, और एक डॉक्टर कल जिन्होंने, हाँ, सत्येंद्र कुमार। तो मैं बल्कि मतलब ये टिम्पल मैडम का भी सजेशन था कि इनका जो एक्सपर्टाइज था, हम इनको एज ए रिसोर्स पर्सन भी यूज कर सकते थे। बहुत मतलब अच्छा लगा इनका वो सुन के, हालांकि दैट वाज इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, लेकिन मिस वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, तो इनको हम एज ए रिसोर्स पर्सन भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं बोलूंगी कि मिस आज लास्ट डे है, तो थोड़ा मिस फेयरवेल टाइप फील हो रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर शालू, थैंक यू डॉक्टर डिम्पल, और थैंक यू वेरी मच। आपके सजेशंस डॉक्टर डीसी सर सुन रहे हैं। चर्चा થઈ ગઈ છે, છૂટી મૂકી દો, तो कंप्लीट कर दो, को बुलवा दूं पहले, जी जी, है ना। सो ठीक है, हमारे साथ है डॉक्टर धीरेन्द्र सर,
प्लीज आपका माइक अनम्यूट करते हैं सर. प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड वी वांट योर सजेशंस आल्सो. डॉक्टर धीरेन्द्र सर प्लीज, इनका माइक अनम्यूट आप कर दें सर. माइक अनम्यूट था. अच्छा म्यूट प्लीज. ठीक है. नमस्ते सबको and good morning to everybody present here and all the 19 diamonds which are the terminology used by everybody. Indeed, it's a wonderful FDP. Now, if you just elaborate the FDP, Faculty Development Program, development with reference to what? If we think with that, then addition of knowledge. Now, knowledge with reference to what? Is it just your subject knowledge? Is it just the general knowledge, a knowledge of a discipline, management knowledge, whatever you can understand? So this FDP is, I must say, that is 360-degree completed. And I'm not flattering the organizing committee, but I have a couple of little, very lengthy feedback. Please allow me, Neetu ma'am, the chairperson of this session, that you please allow me with that, right? Okay. So FDP is always planned to have some input, some addition, supplement to the knowledge of the participant. And this FDP had definitely given so many things to everyone who is looking for something. Whatever they want, they have taken it. It's like open to all. Whatever people had to get what they want, right? So grant success to the FDP. Now, when an event is going to be concluded, it can be reviewed with the post-doc, the management abbreviated word, planning, organizing, POSD staffing, direction, coordination, reporting, excellent planning. You plan everything before. I must want to congratulate Dr. DC sir, Kishore sir, who is before this. You divided people in a group before the event started. So you decentralize. It's a management principle. And so wonderful planning. Coordination, communication, reporting. You people are presenting the presence every day, next day morning, we got the seat. So transparency. So all these things make this event a grand success, and it is not a success. It is an up to mark success, up to mark, where you can say that there is no loophole on a management plan. None of the management committee person was not ready to respond to anybody. So this is a very successful event with reference to that, if we can take it in that way. Transparency, 100% transparency, because I've been a part of so many, couple of times in FDPs. It's a best transparent event. Everything is shared with the group. So there is nothing like that you are having a bias for anybody. Also, best transparency. The resource people you have called from different background, they were so nice. They were the genius of the subject, and their delivery of the subject was so helpful to the group that everybody can take a piece of pizza from that. It's a full pizza, 16, 18 each pizza. Everybody had taken from that. So the selection of resource people was very nice. Now about my group, I've been fortunate to be a part of the group 7, where we have many diversity in university. We have a geography people. We have a Sanskrit member, we have 2 members from the education also, and very surprising to me, we had been given a topic of environment, which is not my cup of tea. So initially I was hesitating and I was going to demand with the DC sir that you please give the psychology to us, because that is my area. Then I said, no, FDP is made to learn something new. Right. So we discussed in a group at the end of the very first day session, and we learned something new. Chalo, let's go with the environment. And with the input of the all group member, we were able to deliver. Now some people might not like about that, but as I've been told to give my input. About the presentation day, this is an academic FDP event. The presentation should follow
the academic ethics, you know, that certain basic requirement, a methodology, objectives, the mention of the resources that needs to be there in the presentation, which I find lacking in many presentation. I'm just suggesting it's a supplement. Please don't take it in a wrong way, because I am also part of this group, these 90 diamonds, you know. So whatever I am saying is applicable to me also. But our group was very much conscious about this part, that this is an academic group. So we need to follow certain criteria when we are presenting a paper. In a marketing, in somewhere hotel, you are presenting a concept, you can go right away with something. But when it is an academic platform, it must have certain rules to be followed. So that if anybody, the other member of the group, now onwards, whenever you are presenting something, then please follow these criteria, because in academy we require to disclose the methodology, we require to disclose the objective of your presentation, we require to disclose the sources we have used. We cannot take any picture from the Google and post it in this way. So this will enhance your knowledge also. And at last, but not least, I must want to congratulate DC sir and Kishore sir. With smile, they are always smiling. Somebody previously commented that this group is a stress-free group because of the smile of the key people. You know, yesterday so many questions were asked to DC sir. और ऐसा है, पेपर बनाना है, पॉइंट में क्या रह सकते हैं मार्क, ये कर सकते हैं क्या. He was always enthusiastic, ready to help the people. This is something that make this group stress-free. And as Shalu ma'am or somebody, Dr. Kavita commented, लगा यार आज last दिन है क्या? And let me share, our group had made a meeting before at 11 AM that आज हमारा last दिन है यार, कल से तो लोग नहीं मिलेंगे, यार अच्छा नहीं लगेगा. So we decided to carry our group. So it's a family bonding within a group, जहाँ सब लोग without ego मिलते हैं. When people are together working as a one team, then this feeling will appear. So congratulations to all the committee members, and especially to the principal ma'am. She must take proud that is such a dynamic and helpful team she is having, and all credits to the other authorities who allow this FDP to be executed. Thank you very much to all of you. And from our group, 65 number, KG sir also is going to give little feedback. So now I am handing over to him to represent the feedback from group 7. KG sir, to you. Okay. Thank you, Patel sir. Am I audible, sir? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर. जी थैंक यू पटेल सर. एक्चुअली जब कोई लास्ट में बोलता है तो उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो फॉर्मल वक्ता होते हैं वो बोल चुके होते हैं, तो उसके साथ समस्या होती है कि उसके पास नया कुछ नहीं होता. और पटेल सर, डेफिनेटली यू डिड नॉट लेफ्ट एनीथिंग फॉर मी. वेल, फिर भी मुझे कुछ कहना है. एज वी ऑल GDCians, government degree college persons, know that DC Sharma is a well-known personality among us. And surprisingly, it could come to you in these abnormal and non-usual days. Well, all the resource persons were very good, very having very deep knowledge. But I am much and far too impressed with Y. Vimla ma'am and K. Srinivas sir. All the person earlier have talked about them, and it was not false. हर कोई ये महसूस करता होगा कि उनकी नॉलेज ने हमको बहुत ही एनरिच किया है. एंड ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द hesitations about e-content and about e-teaching has already been, you can say, removed from our side. For this, I want to give thanks Dr. DC sir, Kishore sir, Dibyanath ma'am, principal ma'am, that they organize such a good course. The most importantly, they divide the groups so that almost all the impacted field of COVID-19 could come to our sense.
वन मोर थिंग आई वांट टू से, जो शायद ग्रुप 5 से मैम बोल चुकी हैं, आई थिंक शालू मैम। ग्रुप 4 के जो प्रेजेंटर थे डॉक्टर सत्येन सर, उनका यू कैन से उनका जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था। और एज वी ऑल नो दैट इन नियर फ्यूचर साइबर क्राइम विल बी ए फार इश्यू फॉर अस, ए वेरी बिग इश्यू फॉर अस। उन्होंने अपने सारे लेक्चर को इतना अच्छी तरह से समराइज किया और इतनी सामान्य सहज भाषा में उसको इंप्रेस किया, मुझे लगा ही नहीं कि वो एक प्रेजेंटर हैं या एक रिसोर्स पर्सन है। डेफिनेटली ही हैज ए नॉलेज जस्ट लाइक ए रिसोर्स पर्सन। हमारे ग्रुप के सभी मेंबर हम लोगों के लिए बोनस हैं। हम सभी जैसा कि धीरेन्द्र पटेल सर हैं, एक ऑफ द रिकॉर्ड में आपसे बोलना चाहूंगा, धीरेन्द्र पटेल सर इज आवर मोटा भाई and this name has been given by one of our group members. It was a great experience. Finally, I give thanks to all the organizing committee, DC sir, Kishore sir, Dibya ma'am, Meenakshi ma'am, Meenakshi Lohani also, although she was one of the group members of our team. Thank you. Thank you, Dr. Dhirendra ji and Dr. Vashne ji. Thank you very much for your kind words, for enlightening, for showing us what the merits and what are the positivity we are taking from this FDP. Thank you, both of you, once again. Now I would like to humbly invite from group number 8, Dr. Sanjeev. Dr. Sanjeev from group number 8. Thank you, madam. Sir. FDP group 6 के सभी विद्वजन साथियों को मेरा अभिनंदन। सर 8 है शायद आपका ग्रुप। सबसे ज्यादा मैं सबसे पहले बादलपुर कॉलेज की आदरणीय, परम आदरणीय, ऊर्जावान प्राचार्य महोदय को शत नमन करते हुए उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि जहां पर भी ऐसी टीम निवास करती है वहां पर इस तरह के आयोजनों का सफल होना निश्चित है। जहां तक इस एफडीपी की बात करें तो इस एफडीपी ने बहुत कुछ सिखाया। मैं कोरोना को भी इसका धन्यवाद दूंगा और एक दो लाइनें सबसे पहले कहूंगा। हम तो खुदा के कायल ही ना थे, हम तो खुदा के कायल ही ना थे, कोरोना ने कहर क्या ढाया, आईसीटी का सबको यूज करना उसने बखूबी सिखाया। ना केवल एक छत के नीचे उसने विद्वजनों को एकत्र करना सिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी कैसे पढ़ाई की जा सकती है, कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये सब इस महामारी में हमने सीखा और सिखाया। तो कोरोना को भी धन्यवाद कि इसके माध्यम से भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। सबसे पहले मैं इस एफडीपी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हुए अपने कुछ शब्द रखूंगा। जैसा कि 6 मई से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज इसका वैलिडिक्टरी प्रोग्राम है, तो प्रथम दिन से जो प्रोफेसर डॉक्टर वीपी शर्मा, जीसी त्रिपाठी जी या प्रोफेसर वाई विमला दास जी का लेक्चर हो, सभी हर रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को विशेष प्रकार का ज्ञान दे रहे थे। कहीं ना कहीं हम लोगों के व्यक्तित्व को उन्होंने निखारा और इस निखार से हम लोग आने वाले समय में किस प्रकार इन अनुभवों का उपयोग कर पाएंगे, ये अपने अपने ऊपर निर्भर करेगा। पिछले 3 दिनों के अंदर जो हम लोगों ने अपने ग्रुप के अंदर इंटरैक्शन किया, एक दूसरे के प्रेजेंटेशंस, एक दूसरे के थॉट्स को सुना, उसके माध्यम से भी हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के काफी नजदीक आए। और इस तरह के यदि विद्वजन लोगों के आयोजन होते रहेंगे तो निश्चित ही इसका लाभ हम सभी एक दूसरे को पहुंचा पाएंगे। इस एफडीपी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डीसी शर्मा जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर किशोर जी, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर नेहा त्रिपाठी जी को मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूं, वो हमारी ग्रुप की टीम लीडर भी थी। मैडम थी तो केमिस्ट्री की,
लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे कि मैडम ने ना केवल ग्रुप के साथ अपनी केमिस्ट्री को सामंजस्य के रूप में बैठा रखा था, साथ ही साथ पूरे के पूरे बादलपुर कॉलेज की टीम ने सभी सदस्यों के साथ इस तरह की केमिस्ट्री सेट कर रखी थी कि शायद मेरे ख्याल से एफडीपी के किसी भी मेंबर को किसी भी प्रकार की अपने विचारों को व्यक्त करने में कोई कठिनाई नहीं आई। तो इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ग्रुप में मैं सभी के अगर डिस्कशन की बात करूं तो अभी डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल जी के मैं विचारों को सुन रहा था। तो धीरेन्द्र जी, आपने लगभग मेरे ख्याल से सभी के विचारों को समाहित कर लिया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए शेष बचा ही नहीं। तो मैं डॉक्टर धीरेन्द्र जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूं। अपने ग्रुप के अंदर डॉक्टर पंकज अग्रवाल, परदी मैम, डॉक्टर प्रीति लता जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर सपना वर्मा, डॉक्टर सत्यप्रिय बंसल जी, डॉक्टर शैलजा, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें अगर साइंस थी तो साइंस के साथ फिजिकल एजुकेशन का भी समावेश था, पॉलिटिकल साइंस के सदस्य थे तो हिस्ट्री के सदस्य भी जुड़े हुए थे। तो इसने सदस्यों को कोविड-19 की जो थीम थी हमारी, कोविड-19 के अंतर्गत जो जो इश्यूज थे, जिसमें इकोनॉमी का इशू था, जिसमें सोसाइटी का इशू था, जिसमें एनवायरनमेंट का इशू था, जिसमें क्या कहते हैं ये साइबर सिक्योरिटी का इशू था, हम सभी लोग अलग अलग फील्ड के होने के कारण अपने विचारों को बड़े स्पष्ट ढंग से कह पाए। और ग्रुप के टॉपिक को प्रेजेंटेशन में परदी मैम ने जिस तरह से प्रेजेंट किया, उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें फिर से बधाई देता हूं। और सभी सदस्यों को पुनः नमन करते हुए मैं इस एफडीपी के सफल आयोजन के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। Thank you so much, Dr. Sanjeev ji. Now I would like to invite from group 9, Dr. Sunita Rawat ma'am. Dr. Sunita Rawat ma'am, please come up with your feedback. जी मैम, am I audible? Okay, yes ma'am, please carry on. Yes. तो मैं बादलपुर कॉलेज के सम्मानीय प्रिंसिपल मैम और डीसी सर और ऑर्गेनाइजिंग टीम के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हम लोगों को ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हम इतना डिस्टेंस पर रह कर के भी एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, और बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतनी दूर बैठ करके भी आपस में इतने अच्छे से बातें कर सकते हैं, अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बधाई तो मैं आपकी पूरी टीम को इसलिए भी देना चाहती हूँ कि इतने हार्ड टाइम पर, कि जो कोरोना पैंडेमिक का दौर चल रहा है, इस टाइम पर आप ये अपना लेकर के आए हैं एफडीपी प्रोग्राम, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं अगर पर्सनली कहूँ तो जैसा कि इस टाइम पर देश के या पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए ना, तो एक ऐसा बहुत ही फेयर का जो माहौल चल रहा है, एक कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्ट्रेस लेवल में तो हम सभी हैं, क्योंकि हम सभी एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मतलब एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को सोचते हैं, और मैं थोड़ा मेडिकल के पर्सपेक्टिव से भी, अगर हम सभी लोग सोचते ही होंगे क्या फैसिलिटीज़ हैं अपने कंट्री में, क्या नहीं हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो एक एंजाइटी लेवल था उसको मैं काफ़ी कम कर पाई आपके इस एफडीपी प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि एक ये माहौल चल रहा था पूरे देश में, माइग्रेंट लेबर्स की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, और इतने लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हैं। तो पता नहीं आगे कैसे होगा, क्या सर्वाइव कर पाएंगे, देश की हालत क्या होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होगा। आई मीन इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हैं जो बिल्कुल 24 आवर्स दिमाग में चलते रहती थी, अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है। बट सब लोगों के साथ डिस्कस करके सारी बातें जान के समझ के, जैसे स्पेशली जो
हमारे जो इनवाइटी लेक्चर था बीपी शर्मा सर का इंडियन फ्यूचर इकोनॉमी पर, उन्होंने जितने डिटेल में अपने सारे पॉइंट्स रखे और क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमको लेना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिससे आगे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो रोशनी दिखाई, एक रास्ता बताया कि ठीक है अभी हालत थोड़े से खराब हैं, लेकिन ऐसे ऐसे स्टेप्स अगर हम लेंगे तो काफी हद तक हम कोप अप कर पाएंगे इन चीजों को। और जैसे विमला मैम का लेक्चर, आई मीन मार्वलस, उन्होंने जितना साइंटिफिक वे में चीजों को एक्सप्लेन किया और हम सबकी क्वेरीज को जितने अच्छे से एंटरटेन किया, बहुत एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन मैम के साथ रहा। और अपने हमारे जो लेक्चर्स हुए, तो जो कल हमारा ग्रुप प्रेजेंटेशन था, सभी ग्रुप मेंबर्स का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बट स्पेशली मैं जो ग्रुप 2 का एनवायरनमेंट पर प्रेजेंटेशन था उसने मुझे बहुत अपील किया। और उसके साथ ही ग्रुप 4 में जो सत्येंद्र सर ने प्रेजेंटेशन दिया था साइबर सिक्योरिटी पर, बहुत इंफॉर्मेटिव था और अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो बहुत एप्लीकेबल भी था, क्योंकि अब हमें सारी चीजें ही वो ऑनलाइन करनी है। और अगर हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में इतनी चीजें नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। जैसे कल इतनी सारी क्वेरीज पूछी कि सर ये मालवेयर कैसे, इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हमारा सिस्टम स्लो हो रहा है या हीटअप हो रहा है या उसकी बैटरी बार बार प्रॉब्लम कर रही है तो क्या, जैसे सर ने बताया ना कि हम सिस्टम तो ले लेते हैं, अच्छे लैपटॉप अच्छी मोबाइल ले लेते हैं, बट हम उसमें एक छोटा सा एंटीवायरस डालने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हैं, करते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स सुनने को मिले सबके प्रेजेंटेशन से, तो इतना एनरिच हुई हूँ मैं और हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स। और साथ में मैं अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स का नाम यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगी। डीसी सर और किशोर सर, आप लोगों ने इतना अच्छा ग्रुप हमें बना करके दिया। सभी ग्रुप्स का जहाँ तक मैंने सबके फीडबैक सुने हैं, बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैं स्पेशली अपने ग्रुप में जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि शिल्पी मैम, जिन्होंने जूम ग्रुप बनाया और इतना अच्छा हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया कि स्टार्टिंग में मैं डे 1 की बात बताऊं तो हम सभी के मन में एक थोड़ा सा हेजिटेशन था। कोई कहीं बैठा है, किसी की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, कोई कहीं गांव में है, तो बार बार कभी हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छे से उन्होंने सब चीजों को हैंडल किया है। शुभा मैम जो हमारी ग्रुप लीडर थी, मतलब इतना उन्होंने प्यार से सबको डील किया। सबको हम लोगों ने जब एक एक टॉपिक आपस में डिवाइड किए, हमारा टॉपिक आईटी सेक्टर से था, यूज ऑफ आईटी सेक्टर। तो आजकल तो आईटी सेक्टर के बिना कोई काम वैसे अभी भी नहीं सोच सकते थे, बट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते अगर हम आईटी सेक्टर पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं। और साथ में सुनील सर, विजय गुप्ता सर जो हमारे रिपोर्टियर भी रहे हैं, योगेश सर जिन्होंने चेयरपर्सन की जिम्मेदारी बिल्कुल बखूबी निभाई है, साथ में विजय शुक्ला सर, रस्तोगी सर, सुबोध सर। तो एक इतना अच्छा ग्रुप आपने हमें तैयार करके दिया कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखा जाए तो सारे काम इतनी स्मूथली अपने आप होते चले गए कि हमें पता ही नहीं चला। स्टार्टिंग में लग रहा था कि 6 डेज शायद एक बहुत लंबा टाइम होगा और पता नहीं हम इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये 6 नहीं 16 डेज का होना चाहिए कम से कम। तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि आप फ्यूचर में भी, क्योंकि अभी हम लोग को नीड है इस चीज की और हम करना चाहते हैं, बहुत डेस्परेट है। आगे आप अगर कोई भी वर्कशॉप ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं तो प्लीज हम लोगों को उसमें जरूर मौका दें, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं और जरूरत भी है, वक्त की जरूरत है कि हम लोग चीजों को सीखेंगे और तभी हम अपने स्टूडेंट्स को और अपना जो हमारा जॉब है उससे हम कुछ ना कुछ एक देखा जाए जस्टिफाई कर पाएंगे कि हम यूं ही खाली नहीं बैठे, हम खुद सीख रहे हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को भी उन चीजों को डिलीवर कर पा रहे हैं। तो श्रीनिवास सर का भी एक जो लेक्चर आपने ऑर्गेनाइज कराया सर, बहुत फ्रूटफुल लेक्चर था। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर के बारे में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया और उनका जो आपने पीडीएफ भी दिया है उसको भी मैंने स्टडी किया है। तो इतनी सारी चीजें बिल्कुल गागर के सागर की तरह उन्होंने उसमें सब कुछ मेंशन कर दिया है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसमें से खोल सकते हैं, उसको देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को खुद से कर सकते हैं। और डीसी सर आपने जो गूगल फॉर्म्स हम लोग को बताया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे कई सारे ग्रुप मेंबर्स को इसके बारे में नहीं पता होगा और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ से सीखूं, मैं किससे पूछूं।
लेकिन अगर आपका ये FDP ना होता तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि यही ना समझ में आता कि इन चीजों को हम किन से सीख सकते हैं, किन से पूछ सकते हैं। आपने एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे मार्क्स करने हैं, आपने इतने अच्छे से बताया। अब हम बच्चों के टेस्ट भी ले सकते हैं, और अगर कोई सेमिनार खुद से भी ऑर्गेनाइज कराना है, क्वेश्चनियर बनाना है, तो वो सारे काम आई थिंक अब हम लोग कर सकते हैं। हाँ, एक बार करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम अगर आती है सर तो आप इतनी लिबर्टी दीजिए कि फ्यूचर में भी आपको परेशान करके आपसे पूछ सके। ये FDP खत्म होने के बाद भी आपसे कनेक्ट रहने का एक मौका हम लोगों को मिला है। तो लास्ट में मैं बस 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करना चाहूंगी कि अभी जैसा माहौल चल रहा है कोरोना का, तो जिंदगी में कई आड़े तिरछे मोड़ आते हैं। हम में से हर कोई कभी न कभी गिरता है, सीखता है, संभलता है। कई असफलताएं रास्ते में आती हैं और कई बार जीत के नजदीक आके भी हार जाते हैं। कदम सुस्त भले हो जाएं पर रुकना नहीं। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Sunita, for your so much full of positivity and this kind words for all the members of our this FDP group. Now, I most humbly invite any of the other member of our this FDP group, he or she wants to express the views or want to say something regarding or have any suggestions, please drop the message in chat box. Pleasure listening to you, ma'am. ना जी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं ग्रुप 1 का जो जी प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी चीफ पैटर्न डायरेक्टर मैम प्रोफेसर डॉक्टर वंदना शर्मा जी को, हमारी प्राचार्य पैटर्न प्रोफेसर दिव्यानाथ जी को, कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर जीसी शर्मा जी को, कन्वीनर डॉक्टर किशोर कुमार को और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी डॉक्टर दीप्ति वाजपेयी, उनकी समस्त टीम शिल्पी, नेहा, मीनाक्षी, अरविंद और आजाद आलम सिद्दीकी, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इन लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम बनाया, ऑर्गेनाइज किया। जैसे कि फूल होते हैं, अलग अलग डाल पे हम लोग लगे हुए थे और एक गुलदस्ते में इन्होंने हमको रखा है 1 हफ्ते तक सजा के, और बड़े अच्छे से जो है हम सब लोग रहे हैं और बहुत कुछ सीखा है। विशेष रूप से डीसी शर्मा जी, क्योंकि ये उन्हीं के दिमाग की उपज है कि हमें जो है इस चीज में जोड़ा जाए, और उन्होंने हमें जोड़ा, बहुत अच्छे व्याख्यान हमें इसमें सुनाए हैं। तो आज हम लोगों का अंतिम दिन है। पहले मैं 4 पंक्ति इसमें कहना चाहूंगी और जरा गौर फरमाएं सब लोग, बड़े हृदय को छूने वाली हैं। किसको सुनाएं, किसको बताएं, कैसी मन में पीर भरी है। वाह। किसको सुनाएं, किसको बताएं, कैसी मन में पीर भरी है। बीती यादों की आंखों में अश्कों की एक झील भरी है। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया। हमेशा, क्योंकि हम बहुत लोग जुड़े, 9 ग्रुप बने, फिर उसमें से हमारे जो हैं 10-10 लोग हम जुड़े, और हमारे ग्रुप नंबर 1 में जो हैं आदित्य प्रताप सिंह जी, अंजू जी, अंकिता, दीपक, देवेंद्र सिंह, आभा दुबे जी, अमित वर्मा जी, अलका जी और अरविंद कुमार यादव जी रहे। हमें आपने 10 रत्न दिए थे, लेकिन हम 9 रत्न रह गए और वाकई में हम 9 रत्न बने। इसमें अब नीतू जी आप कोई हमें 10वां रत्न नहीं दे सकती हैं, हम 9 रत्न थे और 9 रत्न ही रहे। और इसमें हमारी ग्रुप लीडर रही डॉक्टर आभा दुबे जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, पूरे ग्रुप को बांध के रखा। और जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैं कभी कभी असहज हो जाती हूँ, तो उन्होंने बहुत प्यार से उससे मुझे समझाया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और मुझे मतलब कूल रखा। तो क्योंकि मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, मेरी शायद एक कमजोरी है। तो उसके बाद अलका जी ने बहुत अच्छे से ग्रुप में हमारे साथ सहयोग करा, और उनकी बेटी है अंकिता, शायद आप लोगों को पता नहीं है। अंकिता ने जो हमारा ग्रुप का प्रेजेंटेशन दिया, पेपर प्रेजेंट किया हमारा, वो बच्ची सीख रही है, अभी छोटी है बहुत हम लोगों से, लेकिन उसने बहुत साहसिक और बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। और इसी के साथ जो है सब लोग ग्रुप में मिलके इस तरह से टीम की तरह काम करते रहे। रात रात को हमने जो है प्रेजेंटेशन की तैयारी करी, और सब लोगों ने, उसमें विशेष रूप से मार्गदर्शन रहा आभा जी का इसमें। मैं आभा जी को शत नमन करती हूँ, अगर वो मुझे सुन रही है तो उनका बहुत हृदय से धन्यवाद कि ग्रुप को उन्होंने लीड किया और सभी लोगों ने अपनी पूरी इसमें प्रतिभागिता रखी। इसके साथ ही
ग्रुप में जो ये हमारा ये जो है प्रोग्राम चला, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिनेश जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे लोगों को उन्होंने सुनवाया, और किशोर जी ने। और सबसे अच्छा मुझे श्रीनिवासन सर का भी लगा और अब्बासी सर का भी लगा कि बहुत अच्छी जानकारियां उन्होंने दी। और डीसी सर ने जो गूगल पे हमें जो है क्वेश्चनर बनाना, फॉर्म बनाना सिखाया, वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी जानकारी थी जो हम नहीं जानते थे। मैं अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ डीसी शर्मा जी, मैं दोबारा से उसको समझूंगी आपसे, क्योंकि इतनी हाई टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती है। तो इसलिए सभी लोगों ने, जितने भी ग्रुप बने, सब लोग जुड़े, जगह जगह से जो है हम लोग आए और एक साथ हम जुड़े, और भविष्य में भी हमें इस प्रकार के प्रोग्राम की आवश्यकता रहेगी। और आप सब लोग जहाँ जहाँ से भी हैं वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम कराइए और हम लोग को भी जोड़िए। हमसे उम्मीद ना रखें कि बादलपुर वाली टीम ही कराए, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। और किसी को कोई मार्गदर्शन चाहिए तो उसमें डीसी शर्मा जी मार्गदर्शन सबका कर सकते हैं। तो आप लोग भी ऑर्गेनाइज करिए और हम लोग भी ऑर्गेनाइज करें। और एक सुझाव मेरा है, मैं डीसी शर्मा से इसका डिस्कशन भी किया था और अरविंद जी से भी मेरा डिस्कशन हुआ था कि अगर हम इस तरह के प्रोग्राम करें और उसमें जो हम फीस रखें उसे हम अपने महाविद्यालय के कोविड-19 में जो भी हमें सामग्री चाहिए उसके लिए हम उस पैसे को एकत्रित कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि सरकार के पास या मैनेजमेंट के पास इतनी धनराशि नहीं होती है कि वो हम लोगों को हमारी आवश्यकता की जो कोविड-19 में हमें चीजें चाहिए वो हमें उपलब्ध करा सके। तो एक मेरा सुझाव है, आप अपने कॉलेजेस में जाएंगे, अपने प्रिंसिपल से, अपने मैनेजमेंट से इस बात को आप रख सकते हैं। ये बहुत सस्ता और सुलभ साधन है और आगे चल के जो है यूजीसी इसको मान्यता देगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और हमारे यहाँ डीसी शर्मा जी इसमें प्रयासरत हैं, इस तरह के प्रोग्राम को मान्यता दिलवाएं, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और इसी पे अभी तक काफी सारी डिबेट्स चलेंगी और जो है बीच बीच में जो है जानकारियां मिलती रही, लोग आते रहे और प्रोग्राम होते रहे इसमें, और एक हफ्ता पता नहीं चला कि कैसे गुजर गया। ये अभी सही कहा था पटेल सर ने कि 11 बजते थे तो हमारा अलार्म बज जाता था कि हमें अपनी क्लास के लिए बैठना है, 3 बजते थे तो हमारा अलार्म बज जाता था और बड़ा अच्छा लगता था कि सबको सुनते थे, सबको देखते थे कि कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। खट्टी मीठी आपकी यादें हमारे दिलों में रहेंगी हमेशा और कभी ना भूलने वाली चीजें रहेंगी। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद आप लोग भी बादलपुर की इस एंटायर टीम को याद रखेंगे कि हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया अपनी प्रिंसिपल के नेतृत्व में, और डीसी शर्मा जी के मार्गदर्शन के बिना ये काम संभव नहीं था। किशोर जी की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि आप लोग हमारे ग्रुप में बीच बीच में आते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमको देखते रहे और ये सब चीजें बहुत अच्छे से होती रही, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ 4 लाइन आपसे कहूंगी कि मेरे हिसाब से तो आज ये हमारा विदाई समारोह हो रहा है एक तरह से, तो इसमें मुझे खराब भी लग रहा है क्योंकि अब जो हमारे ग्रुप बने हुए थे वो डिलीट हो जाएंगे और हम मतलब पर्सनली टच में रहेंगे, वैसे टच में नहीं रह पाएंगे। तो मैं अपनी 4 लाइन कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए, चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाब में गुजरा हुआ कल मिल जाए। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छे से रन हुआ, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा खराब भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है कि आज हम लोग मतलब कल 11 बजे हम लोग फिर से नहीं मिलेंगे। तो डीसी शर्मा जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी फिर कोई प्रोग्राम करके हम लोगों को इस तरह से फिर जोड़िए और फिर हमें कोई नई चीजें सिखाइए। धन्यवाद। थैंक यू आभा मैडम, थैंक यू सो मच। और हाँ जी, हाँ मोहम्मद वकार जी आपको भी मौका देते हैं। आभा मैडम ने जो बहुत ही भावुक अपने वक्तव्य बोला है मैडम, जीवन की यही रीत है और मिलना और बिछड़ना ये तो चलता रहता है, लेकिन देखिए कई मौकों पर हम आपसे मिले, हम बिछड़े और फिर हम आपसे मिले, तो ये तो चलता रहता है। आप सब लोगों से मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो जाता है और लगभग जितने चेहरे हैं ये जाने पहचाने से अब सब लगने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम दोबारा फिर किसी मंच पर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे मैम। हाँ, ये तो क्या आप कराइए अब कोई अपने यहाँ वेबिनार।
श्योर मैम, करवाया था लेकिन किसी व्यस्तता की वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पाई। अभी 2-3 दिन ही बीते हैं। दिन है मैम, और मैंने भी इसके पहले भी कॉलेज में भी हमारे 2 वेबिनार हुआ था, और रोज ही कोई ना कोई मैसेज आते रहते हैं वेबिनार के। मैं भी कहता काफी सा फॉर्म उसमें वेबिनार हो जाता है, और इसमें काफी चीजें मैडम सीखने के लिए मिली। और कहता है सर तो कॉलेज में हमेशा बताते ही रहते हैं कि हम लोग कम से कम सर के माध्यम से नहीं चाहते हुए भी लेकिन सीखना पड़ता है कि नहीं सर, कुछ ऐसी चीजें कि नहीं करना पड़ेगा, चाहे डर की वजह से जैसे भी तो होता रहता है। मैडम मेरी बस एक, आप लोग सब लोग बड़े सीनियर लोग हैं और हम बहुत ही जूनियर हैं, और मैं एक, और हमने ये कोड किया है, तो कोशिश करें कि जब भी प्रेजेंटेशन दें तो हम रेफरेंस जरूर कोड करें। फिर अभी किसी हमारे साथी ने कहा था कि ग्रुप हमारे आज के बाद खत्म हो जाएंगे। मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव भी है, खत्म ना करके आप उन ग्रुपों को कंटिन्यू करिए, उसमें कुछ नया डेवलप करिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। कुछ, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, चाहे वो जूम ग्रुप है, या कोई और ग्रुप भी आपने बनाया हो, तो इससे क्या होगा, ये चीजें भी चलती रहेंगी आगे और कुछ नया सीखने का आपको शेयर का मिलता भी रहेगा, है ना। मुझे थोड़ा सा बस फिलहाल आप लोगों के साथ यही करना था, बाकी डिटेल प्रेजेंटेशन फीडबैक आपको ग्रुप के साथ मिलेगी। धन्यवाद जी। नीतू मैम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश। आपने जितनी भी क्वेरीज थी अभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स की, उसको बहुत ही अच्छे से आपने उसका सॉल्यूशन दिया, उसको निस्तारित किया। इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे इस एफडीपी का ये जो फीडबैक का अपना कार्यक्रम चल रहा था, आई होप वी कैन कंटिन्यू, और प्रिंसिपल मैम इज गोइंग टू एड्रेस। डॉक्टर दिनेश। प्रिंसिपल में वो नेक्स्ट सेशन में मैम आई, आई थिंक। Okay, so right now what to do? Should I conclude?